good morning, all dear students. We have almost completed the second chapter of economics. We have completed two chapters of economics. Now moving forward with the second part of economics, that is statistics. Your syllabus covers statistics part also, which you are going to study in class 11 along with microeconomics. We have discussed production possibility curve in our last video. Today we are starting with the chapter 1 of statistics portion of economics, that is what does the economics mean, what is the significance of statistics in our life, how statistics deals with the situations. Now in this video we are discussing the basics of statistics portion which are discussed in chapter 1st of the book. Now our first topic is consumer consumption. We all are aware of some of the terms which I am going to discuss in this video. I hope you all have studied before. मैं एक बार फिर से इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ what does the word consumer mean. Consumer is a person who consumes good. Why he consumes good? He has to satisfy his wants. A person who consumes goods for satisfaction of his wants, for satisfaction of his needs, that person is known as the consumer. The other word which is given along with consumer is consumption. What does the word consumption means? Consumption means to consume anything. किसी चीज को consume करना. We are the consumer. Now here I am going to define you the exact meaning of the word consumption. Consumption, if you are talking about consumption, so consumption is the process of, it is a process of using up utility of goods and services. What does the word utility means? Utility means want satisfying power of a commodity. किसी commodity से हमें कितना satisfaction मिलता है, that does the word utility mean. तो utility हमें जाननी है goods and services की for direct satisfaction of our wants. हमें अपने wants को directly satisfy करना है. Directly कैसे satisfy करेंगे? We go to the market, we purchase anything and we come back our home and then we consume it. तो कंज्यूम करने के बाद हमें उससे कितना सेटिस्फेक्शन मिला, दैट इज कंजप्शन. यूटिलिटी मींस इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, उसको उससे हमको सेटिस्फेक्शन कितना मिलता है, दैट इज द वर्ड यूटिलिटी मीन. नाउ आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर एंड कंजप्शन. मूविंग फॉरवर्ड विद द सेकंड वर्ड, दैट इज प्रोड्यूसर. अ प्रोड्यूसर इज अ पर्सन हु प्रोड्यूस द गुड्स. गुड्स को बनाने का काम प्रोड्यूसर का होता है. Why he produced the good? He produced the goods to generate income. इनकम को जनरेट करता है. तो producer is a person who produce goods to generate income. The other word is along with producer is production. Now what does the word production means? Production is the process of converting raw material into finished product. रॉ मटेरियल से हम जब कोई प्रोडक्ट बनाएं, फिनिश प्रोडक्ट बनाएं ताकि हम उसको अल्टीमेटली कंज्यूम कर पाएं, वो हमारा मेथड जो होता है प्रोडक्शन कहलाता है. नाउ थिंग्स बिकम यूजफुल. थिंग्स हमारे यूजफुल कब हो जाती हैं? जब वो यूटिलिटी वैल्यू को एक्वायर कर लेती हैं. अगर हम किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसकी कुछ यूटिलिटी होनी चाहिए, यानी उसकी सेटिस्फाइंग पावर होनी चाहिए कि हम उस गुड से सेटिस्फाई हैं. So that is the word production means. Production is the process by which raw material is converted into finished product. Moving with the third point, savings. The part of the income which is not invested. Income का वो part जिसको हम खर्च नहीं करते हैं, that becomes our saving. वो हमारी saving बन जाती है. And along with then another word is given, that is investment. Investment, what does the word investment means? Investment means it is an expenditure by the producers. Producers के द्वारा वो expenditure करना, वो खर्चा करना on the purchase of such assets which helps us to generate income, जिससे हमारी income generate हो, that is investment. Savings को जब हम save करते हैं for a long period of time, तो हमारे पास जो पैसा जमा होता है वो पैसा हम कहीं खर्च कर देते हैं. तो वो खर्च करते हैं हम क्यों? ताकि हम हमारी उससे इनकम जनरेट हो, उस पैसे से हमें कुछ प्रॉफिट मिले, वो हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाता है. तो इन्वेस्टमेंट इज द expenditure by the producer on the purchase of such assets which helps us to generate income.
Now I hope you all have understood the meaning of these three topics: consumer consumption, producer production, and savings investment. These all three terms comes under economic activity. I have already discussed about economic and non-economic activities in your business studies portion, and you know very well about economic activities, the activities which are undertaken with the main aim of earning profit, with the main aim of earning money. These all comes under economic activity, and the activity which are done for our psychological satisfaction, which are done out of love, out of affection, these all come under non-economic activities. So these three portion, consumption, producer and savings, these all comes under economic activity, क्योंकि इन तीनों को करने के लिए कहीं ना कहीं we require money, and the place where money is earned, where money we get profit, these all are economic activities. Now moving forward with the fourth point, scarcity. Scarcity क्या होता है? We all know scarcity यानी कमी. अब यहाँ we know that in economics we are facing the problem of choice. We are facing some economic problems, and resources are limited in our economy. The uses of that resources have alternative uses. So we are discussing about the scarcity. Scarcity is a major problem which is faced by the economist, which is faced by the economy, the people living in the economy. Now, what does the word scarcity means? Scarcity, a line is given in your book. Scarcity is the undercurrent of economic problem and therefore of economics. It is the problem of economics. Why it is the problem of economics? Because we know that in our economy resources are scarce. Resources की कमी है, and कमी तो है, साथ साथ resources have alternative uses. Alternative uses है. अब मैं आपको example दे रही हूँ. You are having 20 rupees note in your pocket. अब 20 rupees note से आपको यहाँ तो you have to purchase a notebook or you have to purchase a pen costing 20 rupees or 50 rupees. Either you अब इन 20 rupees में से या तो आप notebook खरीद सकते हो या pen खरीद सकते हो. तो means इसमें क्या है? Scarcity है, कमी है. अब इससे आप केवल अपनी एक want ही satisfy कर पाओगे, because resources are scarce and have alternative uses. We cannot escape from the problem of allocation of limited resources. यानी कि हमारे पास resources की कमी है, तो कमी के साथ साथ हमें अपने wants को कैसे पूरा करना है limited means से, alternative uses को. अब हमारे पास जो if we are having 20 rupees, मैंने 20 rupees से example दिया, तो उसको मैं किस तरीके से पूरा करूँगी? 10 rupees का मैं notebook ले लूँगी and the remaining 10 rupees I will purchase a pen. तो इस तरीके से हम जो है लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं. नाउ दैट इज ऑल वी कॉल इकोनॉमिक प्रॉब्लम और द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. इसी को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बोलते हैं. तो स्कैर्सिटी की रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज के को किस तरीके से यूटिलाइज करना है अपनी इकोनॉमी में, दिस ऑल वी स्टडी इन इकोनॉमिक्स. नाउ economics is essentially, economics क्या है? Economics is essentially the study of economic problems. Economics में हम क्या पढ़ते हैं? Economics problems पढ़ते हैं that we must confront owing to the fact that our means are scarce in relation to our wants and that the means have alternative uses. अब हम ये जानते हैं कि हमारे पास scarce means हैं. Scarce means we have limited resources, and within that limited resources, within that scarce means, we have to fulfill our all wants, all needs and desires. We have alternate, scarce have alternative uses. कई तरीके से हम उसको spend कर सकते हैं. अब इसमें एक इकोनॉमिस्ट आया है, रॉबिन्स. रॉबिन्स ने क्या डिफाइन किया इकोनॉमिक्स को? That we are going to explain in this, that I am going to explain in this video about the definition of Robbins. रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर. ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करना, ऐसी साइंस. ह्यूमन का बिहेवियर क्या है? नीड्स को फुलफिल करना, वांट्स को फुलफिल करना. साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स. अब एंड और स्केयर मीन्स क्या? एंड मीन्स कि उसने अपनी वांट्स को पूरा कर लिया, और स्केयर मीन्स जो रिसोर्सेज की कमी है उससे पूरा कर लिया. तो इन दोनों के बीच का रिलेशन, ह्यूमन बिहेवियर का इन दोनों के बीच का रिलेशन, एंड मीन्स का और स्केर्स मीन्स का.
विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, जिसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हों, यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज में यू हैव टू फुलफिल ऑल योर वांट्स एंड डिजायर्स. दिस इज ऑल अबाउट Robbins has given in the definition of economics. Now, three distinct components are given in your book. Three different components. One is consumption, other is production, and third one is investment, or we can call it as distribution. अब consumption क्या होता है? Consumption मैंने पहले ही बता दिया है कि to consume anything, as we know that people have limited resources and they have to fulfill all their wants and desires. अब वो fulfill कैसे करेंगे? They do allocate their given means to purchase of different goods and services so that their satisfaction is maximized. क्या वो अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज को लिमिटेड इनकम में परचेज कर पाएंगे ताकि उनकी सारी वांट्स फुलफिल हो जाए? ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज गिवन इन योर बुक, ताकि उनकी जो सारी वांट्स एंड जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमाइज हो जाए. ये चीजें हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ कंजप्शन में या स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में. ये क्या कहता है कि व्हेन वी फॉर्मुलेट अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड रिलेशनशिप एक्सप्लेनिंग हाउ कंज्यूमर्स टेंड टू बिहेव, वी कॉल इट एज कंजप्शन थ्योरी. कंज्यूमर लिमिटेड इनकम में किस तरीके से बिहेव करता है, अपनी लिमिटेड इनकम में अपने वांट्स को, अपनी नीड्स को जिस तरीके से वो फुलफिल करता है, वो थ्योरी हमारी कंजप्शन थ्योरी कहलाती है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द सेकंड टर्म, दैट इज प्रोडक्शन. प्रोडक्शन मींस वी नो दैट प्रोड्यूसर्स हैव लिमिटेड रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस एनीथिंग. Also given prices of different goods, how do they choose to produce those the production which offers them maximum revenue so that their profit is maximized? They have limited resources, demand is more in the market, consumer wants to fulfill his demand. अब वो given resources से किस तरीके से goods बनाए ताकि जो उनकी revenue है वो maximize हो जाए, revenue नहीं, profit maximize हो जाए. This is the study of production. इसको हम production की study बोलते हैं और we can call it as the study of producer behavior. Now, when we formulate a set of standard relationship, जब हम standard relationship का फॉर्मूला सेटअप करते हैं, स्टैंडर्ड रिलेशनशिप यहाँ पे प्रोडक्शन में क्या कहलाता है? प्रोडक्टिविटी ज्यादा होना और प्रोडक्टिविटी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा होना. तो इससे हमें क्या पता चलता है? ये जो इससे जो थ्योरी निकलती है वो थ्योरी हमारी we call it as the production theory. So in this video we have discussed about the two theories. Consumption part में we have discussed consumption theory, and in production part we have discussed about production theory. Now moving forward with the third point which is given in your book is distribution. Distribution क्या होता है? If you are a student of economics, you are interested in knowing how income is distributed among those who work as agents of production. जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके पास इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये हमको पढ़ना है. These are the owners of factors of production. अब ये जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है प्रोडक्शन की, किसको डिस्ट्रीब्यूट होती है? एजेंट्स को. अब इसके एजेंट्स कौन है? जो प्रोडक्शन करते हैं, जो प्रोडक्शन को करने में हेल्प करते हैं. इसके एजेंट्स हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. लैंड वी रिक्वायर फॉर प्रोडक्शन, लेबर बिना लेबर के प्रोडक्शन होगा नहीं, कैपिटल बिना कैपिटल के, बिना पैसे के हमारा प्रोडक्शन होगा नहीं, एंड द लास्ट वन इज एंटरप्रेन्योरशिप, अ पर्सन हु गिव्स अस द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अप द बिजनेस और स्टार्टिंग अप द प्रोडक्शन. तो वो पर्सन भी जरूरी है, एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन, तो वो भी जरूरी है सो दैट कि हमारी जो बिजनेस है, जो हमारा प्रोडक्शन है वो अच्छे से हो पाए. तो हमको क्या करना है? इन एजेंट्स के थ्रू इनकम डिस्ट्रीब्यूट करनी है. अ पार्ट ऑफ इनकम जनरेटेड विल गो टू द ओनर्स ऑफ द लैंड. अब लैंड के पास कैसे जाएगी? अब लैंड अगर हमारा रेंट पे होगा तो हम उसको रेंट के फॉर्म में पैसा देंगे, लेबरर्स को वेजेस मिलेंगी, कैपिटल हमने लगाया है, कैपिटल जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उससे हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे. और एंटरप्रेन्योरशिप के पास कैसे जाएगी? अ पार्ट विल गो टू द एंटरप्रेन्योर्स इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट. कुछ हिस्सा एंटरप्रेन्योर के पास जाएगा प्रॉफिट के फॉर्म में. तो यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूशन में चार चीजें डिस्कस की, जो कि इनकम हमारी जो
प्रॉफिट होता है हमारे बिजनेस से वो 4 लोगों के पास जाता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. सो बिसाइड्स दीज 3 मेजर कंपोनेंट्स, तो इसमें जो थ्योरी निकलती है वो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी कहलाती है. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स को हम बेटा दो तरीकों से पढ़ते हैं, एक सिंगुलर से और एक प्लूरल से. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्टैटिस्टिक्स थ्रू प्लूरल सेंस. प्लूरल सेंस में स्टैटिक्स क्या होता है? प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स रिफर्स टू इंफॉर्मेशन in terms of numbers और numerical data. numerical data में numbers के फॉर्म में जब information शो करें वो हमारा जो सेंस होता है वो plural sense कहलाता है. जैसे राम gets 500 rupees per month as pocket allowance is not a statistics. अब 500 रुपए उसको मिलते हैं, ये statistics नहीं है. एवरेज कितना मिलता है उसको हर महीने का हम कैलकुलेट करें, that is not statistics. We have to calculate the average. Whereas average pocket allowance of the students of class 10th is 500 per month, or there are 80 students in class 11th compared to just 8 and 12th of your schools are statistics. तो statistics को हम numerical data में फॉर्म करते हैं और statistics का केवल एक डेटा आता है exact one. A difference is given in your book about the data which is statistics and which is not statistics. Read from the book. If you face any problem then we can discuss in tomorrow's video. Tomorrow's class. Now, moving forward to the definition of statistics in plural sense. Plural sense में definition is given. We are going to discuss the definition in this video. Statistics are numerical statements of facts. Fact क्या है यहाँ पे? सच्चाई है कि average worker जो है he is earning rupees 500 per month. तो ये fact है. और numerical data भी है 500 rupees, that is numerical. In any department of inquiry placed in relation to each other. अब अगर हमको relation place करना है कि a labor is getting 500 per month and average labor is getting 500 per month, then average worker. तो ये हम comparison कर रहे हैं दो लोगों का in relation to each other. This definition is given by Bowley. Now features of statistics. इसके फीचर्स प्लूरल सेंस की अभी आई हैव डिस्कस्ड द डेफिनेशन. नाउ आई एम डिस्कसिंग द फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस. फर्स्ट इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट. एग्रीगेट ऑफ फैक्ट मींस अ सिंगल नंबर डज नॉट कंस्टिट्यूट स्टैटिस्टिक्स. कोई सिंगल नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं निकालता, ना ही उससे कोई कंक्लूजन निकलता है. एग्रीगेट बहुत सारे ग्रुप हों उसमें से अगर हम एक डेटा निकालें तो वो डेटा हमारा स्टैटिस्टिक्स निकलता है. जैसे if I have stated that 100 students, if there are 100 students in our college, that it is no statistical significance. If it is stated that 50 students in art faculty, 20 in commerce faculty and 30 in science faculty, it makes statistical sense as the data conveys statistical information. अगर मैं केवल सिंपली ये बोलूँ कि 100 स्टूडेंट्स हैं या 100 फैकल्टी है हमारी, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, मुझे पूरा डेटा चाहिए. वी वांट एग्रीगेट. एग्रीगेट मींस वी वांट ग्रुप. डेटा चाहिए, वी रिक्वायर पर्टिकुलर डेटा. अगर मैं बोलती हूँ कि आई वांट द हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, तो मैंने सिंगल स्टूडेंट की हाइट ले ली, दैट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स. अगर मैं एक पर्टिकुलर क्लास में जाकर के सबकी हाइट लेती हूँ, दैट इज स्टैटिस्टिक्स. सेकेंड इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड. Statistics is expressed in terms of numbers. Like qualitative aspects like big, small, rich, poor are not statistics. अगर मैं ये बोलूँ कि rich, poor है, big, small है, tall, short है, this is not statistics. Statistics is always expressed in number. If it is stated that the height of a particular student is 4 feet 4 inches, then that numbers. अगर मैंने बोला कि 4 feet 5 inch है, 5 feet 4 inch है, मैंने न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस किया डेटा को, दैट इज स्टैटिस्टिक्स. प्लूरल सेंस हमारा कहता ही है कि हमें डेटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. थर्ड वन इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस. स्टैटिस्टिक्स इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी सिंगल फैक्टर बट इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स. एक सिंगल फैक्टर से कुछ नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल 30% rise in price may have due to several causes like reduction in supply, increase in demand.
जैसे गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया 15%, तो 15% केवल एक कारण नहीं है उसका कि सप्लाई कम हो गई, डिमांड बढ़ गई है मार्केट में, या टेक्नोलॉजी नहीं आ गई है। इसके कई कारण होते हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर परसेंट बढ़ाता है मार्केट में। फोर्थ वन इज रीजनेबल एक्यूरेसी। A reasonable degree of accuracy must be kept in view while collecting statistical data. This accuracy depends on the purpose of investigation. Reasonable accuracy यानी अगर कोई डेटा हम एक्यूरेट निकाल रहे हैं तो वो रीजनेबल होना चाहिए, ताकि हम इन फ्यूचर उस चीज का रीजन बता पाए कि ये अगर चीज है, अगर इसका इतना वेट है तो क्यों है, अगर इसका ये है तो मैंने यहाँ से निकाला तभी मुझे ये डेटा मिला, अगर मैंने किसी स्टूडेंट की हाइट ली तो यहाँ से ली, यहाँ जाके विजिट की, तो इसका ये एक्यूरेट डेटा वी रिक्वायर और उसका कुछ रीजन होना चाहिए। फिफ्थ वन इज म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल। न्यूमेरिकल्स अलोन विल बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स एज आर म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल। यानी कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि श्याम इज 40 years old, मोहन इज 5 feet, Sohan has 60 kg of weight. Then these numbers will not be called statistics. They are mutually related, not the subjective. यानी कि अगर मैंने हाइट निकाली तो मुझे सबकी हाइट चाहिए, मैंने वेट निकाला तो मुझे वेट चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने बोला राम 6 feet 5 feet 4 inch टॉल है, श्याम इज ऑफ 60 kg। तो डेटा जो है एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए, डेटा जो है अलग अलग नहीं होना चाहिए। प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। स्टैटिस्टिक्स की डेटा जब हम कलेक्ट करते हैं तो हमारा एक डेफिनेट ऑब्जेक्टिव पूरा होना चाहिए। अगर हम हाइट निकाल रहे हैं तो हम हाइट ही निकालेंगे, ताकि वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स। मुझे एवरेज हाइट निकालनी है तो मुझे उसके लिए सबसे पहले सबकी हाइट चाहिए। तो हमें पहले ऑब्जेक्टिव को सेटअप करना है कि जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारा ऑब्जेक्टिव को पूरा करेगा कि नहीं करेगा। सेवेंथ वन इज एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। स्टैटिस्टिक्स की डेटा जब हम कलेक्ट करते हैं तो एन्यूमरेशन के साथ, एक एस्टिमेशन के साथ करना डेटा कलेक्ट की जाती है। अगर इन्वेस्टिगेशन की फील्ड वास्ट है, बहुत बड़ी है, तो जो प्रोसीजर होता है एस्टिमेशन का वो हेल्पफुल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1 lakh पीपल अटेंडेड द रैली एड्रेस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली एंड 2 lakh इन मुंबई। दीज स्टैटिस्टिक्स आर बेस्ड ऑन एस्टिमेशन। एक एस्टिमेशन लगाया हमने कि रैली में 1 lakh पीपल अटेंड किए दिल्ली में और 2 लाख लोग मुंबई में आए, तो एक एस्टिमेशन मैंने लगाया। अब इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? एन्यूमरेशन से, कि वेदर उसमें इतने लोग आए कि नहीं आए। एंड द लास्ट वन इज कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। स्टैटिस्टिक्स की डेटा को हमेशा सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट करना चाहिए। इसको कलेक्ट करने से पहले वी मस्ट मेक अ प्रॉपर प्लान। नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द स्टैटिस्टिक्स कलेक्टेड इन haphazard manner। मतलब जल्दी जल्दी में we don't have to do any work, we should take proper care before collecting the data and statistics, like data regarding the marks secured by the students or the maximum marks or the examination that will lead to no conclusion। इसका कोई conclusion नहीं निकलता। डेटा जो है हमेशा सिस्टमेटिकली निकालना चाहिए। इन शॉर्ट अगर हम कंक्लूड करें तो प्लूरल सेंस में हम क्या बोल सकते हैं? All numerical data cannot be called statistics, but all statistics are called numerical data। अगर मैंने एक सिंगल डेटा को एक्सप्रेस किया कि वो statistics है, तो हम नहीं बोल सकते कि वो statistics है। All numerical data are not called statistics, but all statistics are called numerical data। I hope you all have understood the features of plural sense। Moving forward to the next part, that is statistics, a singular noun। अगर हम नंबर्स की बात करें तो वो प्लूरल सेंस हो जाता है, और अगर हम मेथड्स की बात करें, टूल्स की बात करें, टेक्निक्स की बात करें, तो वो सब हमारे सिंगुलर सेंस में आ जाते हैं। अब सिंगुलर सेंस में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज कलेक्शन, presentation, analysis and interpretation of numerical data। numerical data को कलेक्ट करना, प्रेजेंट करना, यानी शो करना कि मैंने ये कलेक्ट किया है, एनालिसिस करना, उसकी स्टडी करना, और उसके बाद उस चीज को इंटरप्रेट करना, उस चीज को बताना, वो सब चीजें हमारी स्टैटिस्टिक्स कहलाती हैं सिंगुलर नाउन में।
अब सिंगुलर नाउन में अगर हम बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स की अपनी 5 स्टेजेस हैं. 5 stages are given in your book. One is collection of data. Collection of data is given कि मुझे पहले डेटा को कलेक्ट करना है. मैंने हाइट कलेक्ट की डेटा की, हाइट तो कलेक्ट की, लेकिन मैंने रोल नंबर वाइज नहीं कलेक्ट की. जो बच्चे लेफ्ट साइड से बैठे थे मैंने एक एक करके सबको खड़ा किया और मैंने उनकी हाइट ली. तो ये मैंने डेटा कलेक्ट किया. डेटा कलेक्ट करने के बाद पहला पॉइंट होता है अपना कलेक्शन ऑफ डेटा. सेकेंड स्टेज इज ऑर्गेनाइजिंग द डेटा. डेटा को ऑर्गेनाइज करना है. ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे हम? हाइट वाइज कर सकते हैं और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कर सकते हैं, रोल नंबर वाइज कर सकते हैं. तो दीज आर सम ऑफ द वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा. थर्ड इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. डेटा को रिप्रेजेंट करना है, हमें दिखाना है. उसके बाद फोर्थ स्टेज इज एनालिसिस ऑफ डेटा एंड द लास्ट वन इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. दीज आर द 5 स्टेजेस. अब ये 5 स्टेजेस जो है वो कैसे डिस्कस की जाती हैं? पहली स्टेज जो मैंने बताई थी डेटा कलेक्शन की, डेटा को कलेक्ट करते हैं थ्रू सेंसस, यानी घर घर जाके पता लगाते हैं कि पॉपुलेशन इतनी है और इन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इनके पास इतना ये है, इनके पास इतना वो है. तो सेंसस और सैंपल टेक्निक्स. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के टूल्स क्या है? डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? थ्रू टेलीबार्स. टेलीबार्स यू हैव ड्रॉन, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा इन क्लास 9th और 10th. टेलीबार्स ऐसे ड्रॉ करते हैं हम लोग. तो टेलीबार्स के थ्रू हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एरे के थ्रू कर सकते हैं. डेटा को प्रेजेंट कैसे